मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बानी दरसगाह सर सैयद अलैहिर्रहमा की 197वीं यौम विलादत के इस पुरमसरत मौके पर मैं दुनिया भर में फैले हुए आशिक़ाने सर सैयद को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। यूनिवर्सिटी की देरीना रवायात के मुताबिक आज की इस खूबसूरत बज़्म का इफ्तिताह आयात करीमा की तिलावत से होगा। मैं गुजारिश करूँगा कारी आफ्ताब आलम साहब से कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद पेश करें।
मुतासरीन के लिए 51 लाख रुपया की रकम से तामीर किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश है कि सर सैयद एजुकेशनल फाउंडेशन कायम करके मुल्क भर में दिल्ली पब्लिक स्कूल की तर्ज पर सर सैयद पब्लिक स्कूल कायम करके सर सैयद अहमद ख़ान का मिशन को आगे बढ़ाया जाए और अलीगढ़ तहरीक को फ़रोग़ दिया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख़ में पहली मरतबा वाइस चांसलर जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब के क़यादत में एक अजीम दानिशगाह के इसातिज़ा और तलबा का हौसला अफजाई के लिए सर सैयद इनोवेशन अवार्ड कायम करने का फ़ैसला भी लिया गया है। मुझे खुशी है कि इस अवार्ड के and worked for it. It certainly isn't easy for a man to sacrifice his career, his youth, his family, in fact his whole life for the betterment of Muslims. He continued his mission without a pause, even when the orthodox leaders issued fatwas of kufr against him when he spoke of modern education. As they say, the journey of 1,000 miles begins with a single step. And it all began in the year 1862 when he founded a madrasa at Ghazipur for imparting education mainly in English, Urdu, Persian, Arabic and Sanskrit. And in the year 1864, he instituted the Scientific Society to create a scientific temperament among the Muslims and to make the Western knowledge prevalent. In 1875, Sir Sayyid founded the Muhammadan Anglo-Oriental College after Oxford and Cambridge universities that he visited. There was no denying that English was an essential language that time, and for Muslims to acquire proficiency in the English language, the modern science, if the community were to maintain its social and political identity. And therefore, his objective was to build a college in time with the British education system, but without compromising its Islamic values. He wanted this college to act as a bridge between the old and the new, the East and the West. While he fully appreciated the need of imparting education based on Western language, he was not oblivious to the Oriental learning and wanted to preserve the rich legacy of the past. And this is exactly what Aligarh Muslim University is supposed to be about. Not just education, but values and culture and the overall development of an individual. With each of us being a part of this great institution, how many of us feel indebted to Sir Syed Ahmad Khan and see the true essence of this place? How many of us have the strength and courage he possessed? How many of us have done anything for this university? And strength isn't about standing up for someone, but it is about standing up for something that you believe in. How many of us have returned a favor for this university has offered us? We brag of our love for this university and for Sir Syed Ahmad Khan, but have we ever really proved it? There's an old saying that a good friend is like a leafy tree. For when a tree is in full bloom, one has the pleasure of its shade and the enjoyment of its fruit. And when it withers, its wood is put to many uses. Sir Syed Ahmad Khan was one such friend to the Muslims. When he was alive, he labored for them his body, his words, his money, and when he died, he left the memory of his love and work imprinted on their hearts. Let this Sir Syed Day be a day when we reflect on who we really are. And are we really the kind of people he wished us to become? Or is it just the Aligharian tag that we flaunt? Happy Sir Syed Day to all. Thank you. असातिज़ा की नुमाइंदगी इकराम सर सैयद के लिए अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी एक नज़्म में शेर कहा था, चेहरे से आया जलाल शाही, चेहरे से आया जलाल शाही, चेहरे पे फ़रोग़े सुबह गाही। चूँकि वक्त बहुत तंग है और आज जुमे का दिन भी है, इसलिए तफसीली गुफ्तगू करने का बिल्कुल मौका नहीं है। जो आलिमाना अफ़कार व ख़यालात यहाँ अभी पेश किए गए हैं उनसे क़त्अ नज़र करके सिर्फ चंद इशारों में अपनी बातें अर्ज़ करूँगा। जवादुद्दौला आरिफ जंग सर सैयद अहमद ख़ान बहादुर एक जामे सिफ़ात और मुख्तलिफ़ जिहाद शख्सियत के मालिक थे। वो बैक वक्त एक मुफ़क्किर, मुहक्किक, सहाफ़ी, माहिर तालीम और मुस्लिह व मुदब्बिर थे। उनकी ज़िंदगी जहद मुसलसल, अमल पेहम और अज़्म मुसम्मम से इबारत थी। इसीलिए शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा था
यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। और उससे भी ख़तरनाक बात सर सैयद के तरफ इशारा करके कही थी, जो हमारा पूरा तारीख़ी पस मंज़र उससे वाज़े हो जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। हज़रात, सर सैयद के कारनामे इतने वसी और मुतनव्वे हैं कि 5 मिनट में इनमें से एक का भी अहाता नहीं किया जा सकता। मुख्तसरी आला तालीम को समझते थे, इसलिए उनका सबसे ताकतवर पैगाम, जिसका यहाँ बार बार जिक्र किया गया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और ख़ासकर मुसलमानों को, जिन्हें अंग्रेज़ों ने बगावत का, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग का मुजरिम करार देकर चुन चुन कर सूलियों पर चढ़ाया था, और 2 माह में 3 लाख मुसलमानों की ज़िंदगियाँ ख़त्म और उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली थीं। बाकी बचे हुए मुसलमानों को बेयार व मददगार छोड़कर और एक तरह से भीख मांगने के काबिल बना दिया था। उस वक्त का हाल ये था, घरों से खींच कर कुश्तों पर कुश्ते डाले हैं, कुश्ता कहते हैं लाशों को, घरों से खींच कर कुश्तों पर कुश्ते डाले हैं, ना गोर है, ना कफन है, ना रोने वाले हैं। ऐसे तबाहाल मुसलमानों के सामने सर सैयद ने बिलाखिर ये पैगाम दिया कि जो कुछ होना था वो हो चुका, अब मायूसी ख़त्म करो, नाउम्मीदें छोड़ो, जदीद मगरिबी तालीम हासिल करो, दोबारा कामयाब और सुर्ख रूह हो जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो मज़हब तालीम हासिल करने पर बार बार जोर देता है, उतलुबुल इल्मा वलो कान बिस्सीन कहकर और उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी कहकर पैदाइश से मौत तक तालीम हासिल करने की तलकीन करता है। इसके लिए उन्होंने अपने रुफ़ाक़ा के साथ मिलकर ज़बरदस्त जद्दोजहद की, पूरे मुल्क में घूम घूम कर दिलसोज और वलवला अंगेज़ तकरीरें की, तहज़ीबुल अखलाक जिसे इनकलाबी रिसाला निकाला, और अपनी पक्की धुन और लगन से बिलाखिर पहले स्कूल फिर कॉलेज कायम कर दिया। और उनकी इसी कोशिश के नतीजे में आज हम यहाँ बड़े इत्मीनान और फ़ख्र से सर जोड़ कर बैठे हैं। फ़िक्र रहती थी मुझे जिसकी, वो महफ़िल है यही, सब्र इस्तक़लाल की, सब्र इस्तक़लाल की माफ़ कीजिए, सब्र इस्तक़लाल की खेती का हासिल है यही। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि मेरे सामने जो सफ़े सामईन है उसमें अहले इल्म की एक ऐसी कहकशा मौजूद है जिनमें से बहुतों का दर्जा स्टेज पे आने का था। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ तो जो है वो अपनी जगह क़यामत है। लेकिन मैं ख़ास तौर से वेलकम करना चाहूँगा, इस्तकबाल करना चाहूँगा आली मरतबत मेहमान ख़ुसूसी नजीब जंग साहब के बड़े भाई जनाब हमीद ज़फ़र जंग साहब यहाँ मौजूद हैं। बराह करम हाथ उठाकर आप इशारा कर दीजिए ताकि लोग आपका इस्तकबाल कर सकें। मैं ख़ास तौर से इस्तकबाल करना चाहूँगा बेगम मेहमान ख़ुसूसी बेगम नजीब जंग साहिबा का, और दूसरे मौज़िज़ मेहमानान यहाँ पे मौजूद हैं, नदीम तरीन साहब की फ़ैमिली है। आप सबको दिल की गहराइयों से मैं यूनिवर्सिटी की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट and as a mark of love and affection, we would certainly like to welcome our guest and present mementos. May I request Honorable Vice Chancellor, Lieutenant General Zamiruddin Shah, to welcome the Chief Guest, Mr. Najib Jang Sahab, Lieutenant Governor of Delhi, with memento. May I now request the Vice Chancellor to welcome His Excellency Dr. Abdul Aziz Osman Tawajiri, who has been conferred upon DLIT only yesterday. He is Director General, Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization and Secretary General of Federation of Universities of Islamic World, Dr. Osman. May I now request the Honorable Vice Chancellor to present a memento to none other than an outstanding Algerian, Mr. Nadeem A. Tareen. Now, Dr. Nadeem A. Tareen, I'm sorry. Please give a huge round of applause. आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक और मौजूद मेहमान
अलीगढ़ की मेयर शकुंतला भारती को भी खुशामदीद कहता हूं, जो यहाँ मौजूद हैं। मैडम, आप भी हाथ उठा दीजिए प्लीज़। I would now like to invite Dr. Faiza Basi for declaration of Innovation Council Awards. Dr. Faiza, please. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Sharik. Honorable dignitaries on the dais, guests, ladies and gentlemen. This commemoration meet of the Sir Syed Day 2014 at the Aligarh Muslim University will be marked in history. Today, the AMU community will rejoice in the investiture of a novel attempt to give a fillip to innovation without a conch. This day, we feel blessed to observe our first ever Sir Syed Innovation Festival. The newly founded Innovation Council of the University, with the Pro-Vice Chancellor as its chairman, aims to tap innovative skills and promote research activities in the university. Today, the university declares the Outstanding Researcher of the Year Award 2014 of Rs 1 lakh to Professor Asadullah Khan and Professor M. Mursaleen jointly in the science stream. Also, the Sir Syed Outstanding Invention of the Year Award for Rs 1 lakh goes to the AMU's nanotechnology program under S. Alim Hussain Naqvi and his team. Citation for Outstanding Researcher of the Year Award 2014 to Professor Asadullah Khan. Professor Asadullah Khan, Coordinator, Interdisciplinary Biotechnology Unit, Aligarh Muslim University, was born in 1972 in Badaयूं. After his initial education in the AMU schools, he graduated in chemistry and chose biotechnology for his postgraduate program, leading to a doctorate in biochemistry from the AMU. He joined the university in 1997 as lecturer in the Interdisciplinary Biotechnology Unit and was promoted as reader in 2006 and recently as professor. Professor Khan's area of interest in research is medical microbiology, with special reference to multiple drug resistance in bacteria and its therapeutic approaches through nanoparticle-based medicine and effect of anti-neoplastic drugs on transcription machinery. Recently, he has discovered NDM4 bacterial strain in India. Professor Khan has received several international and national awards, honors, and fellowships. Lately, he received the National Bioscience Award from the Department of Biotechnology, Government of India, for career development. The Association of Microbiologists of India also recognized Professor Khan by conferring upon him the Young Scientist Award of the Year 2006 and the Alembic Award in 2009. He has guided 12 PhD students, edited 3 books, and co-authored over 133 research articles in peer-reviewed journals with Google citations 2,727 between 2009 and 14 and an H-index of 830. His work has been cited in top scientific journals like Nature, Cell, EMBO-J, JBC, etc. He is a member of the editorial board of several international journals, French public scientific organizations, CNRS, INSERM, and of Netherlands organization Zone MW as reviewer to the research grant proposals. In recognition of his outstanding research achievements, the university has selected Professor Asadullah Khan for the Outstanding Researcher Award of the Year 2014 Science Stream. He would share the honor and the prize money of Rs 1 lakh with Professor Muhammad Mursaleen of the Department of Mathematics of the university. I request the chief guest, Shri Najib Jung, to confer the award upon Professor Asadullah Khan and hand him the check of Rs 50,000. Citation for Outstanding Researcher of the Year Award to Professor Muhammad Mursaleen.
Professor Muhammad Mursaleen, coordinator DRS program, has been working as professor in the Department of Mathematics AMU since 2003. Born in 1953 in Badaयूं, he joined the university in 1997 as undergraduate student and completed his doctorate in mathematics in 1976. Besides teaching, he always has been actively involved in research and has published about 212 research papers in a number of peer-reviewed journals of high international repute. He has been supervisor to 12 PhD students and recently published 3 books by Springer. He is referee to about 100 international journals, is associated with several scientific and advisory boards, and member of editorial boards of 15 international journals. In 2013, he was identified as the second most cited author of the university by Scival of Elsevier. He has discovered several new methods of the convergence of sequences and series known as statistical summability methods and has applied these methods in approximation process and Fourier and Walsh-Fourier series. He has also worked on application of measures of non-compactness in differential and integral equations. These methods have received high appreciation from researchers all over the world. 2 of his papers have 212 and 115 citations respectively, and 13 of his papers were cited more than 50 times. He has 2,785 citations during 2009-14 to his credit, with an H index of 30 and I-10 index of 73. Professor Mursaleen presently is collaborating with 81 research workers, of which 53 are from foreign countries. He has worked jointly on 23 international projects. In recognition of his outstanding research achievements, Professor Mursaleen has been selected for the Outstanding Researcher Award of the Year 2014, Science Stream. He would share the honor and the prize money of Rs 1 lakh with Professor Asadullah Khan of Interdisciplinary Biotechnology Unit. Once again, I request the Chief Guest, Shri Najib Jung, to confer the award upon Professor Mursaleen and hand him a check of Rs 50,000. Citation for the Sir Syed Outstanding Invention of the Year Award 2014. The Aligarh Muslim University Nanotechnology Program is led by Professor Syed Alim Hussain Naqvi, who initiated in 2007 2 postgraduate courses in nanotechnology under Department of Applied Physics, AMU. Advanced PG Diploma in Nanotechnology of 1-year duration was started with the support of UGC under its Innovative Teaching and Research Program, whereas MTech Nanotechnology took off with the support of Nano Mission of DST. Since then, the program has been progressing well and also got support of UP Council of Science and Technology for establishing a Center of Excellence in Material Science, Nanomaterials. Further, DRS in Nanoscience and Nanotechnology was also awarded by UGC. Professor S. Alim H. Naqvi happens to be coordinator in all these programs. Novel interdisciplinary research activities have been taken up along with Dr. M. Wasi Khan and Dr. Braj Raj Singh, who are amongst the most active members of the nanotechnology team. During the last 3 years, the team has published more than 100 papers in peer-reviewed international journals, filed 7 patents, developed 10 commercial products, and generated 4 innovative technologies. Their most important 5 discoveries are nanoformulation for fruit and vegetable preservation at ambient temperature, nanomaterials-assisted biodiesel production from animal fat and biomethanol, portable water purification device based on biocompatible nanomaterials, nanonutrients for agriculture, and herbal nano tea. The Aligarh Muslim University is proud of the achievements of this center in such a short time and hereby acknowledges the contributions of Nanotechnology Center
by conferring the honor of Sir Syed Outstanding Invention of the Year Award 2014 for harnessing innovation skills and promoting original research activities in the university. One last time, I request the Chief Guest, Shri Najib Jung, to confer the award upon Professor Alim H. Naqvi and his team and hand over a check of rupees 1 lakh to the team of Professor Alim H. Naqvi. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the university each year organizes All India Sir Syed Essay Writing Competition on the life and Aligarh movement. This year also these competitions were held. We are very privileged and honored to have the winners from all over India here. They will be given away prizes by the guest of honor, Dr. Abdul Aziz Usman Al-Tawajiri, Director General, Islamic Educational, Scientific and Culture Organization. This year, General Education Center also organized on-the-spot essay writing competition, and the winners will be included here also. Ladies and gentlemen, I would now like to request His Excellency, Dr. Usman, to please honor the recipients of All India Essay Writing Competition. Dr. Faiza, once again, please. The Sir Syed Memorial Essay Competition was instituted by the Aligarh Muslim University in 2008. Since then, this competition has been organized at the national level every year without fail. Entries are invited from higher education institutions in all states of India, and the good news is that the number of states represented in this competition is continuously on the rise. For the year 2014, essays were submitted by contestants on the topic, Sir Syed envisioned AMU to be Oxford of the East. How do we make it Oxford of the world, a world-class university? Ladies and gentlemen, I'm delighted to share that in the year 2014, this competition was organized for the 7th time in a row, and we received a total number of 91 essays from 17 states of India. I must say that the quality, style, and content of the essays was generally of a high standard, especially in the A and A+ category, and judging them needed several careful reviews in a double-blinded evaluation process. Depending on the state of origin, according to the hometown address provided by the contestants, there are 17 state toppers who are receiving a prize money of rupees 5,000 each. The All India third prize contains 10,000 rupees, the All India second prize is of 15,000 rupees, and the All India first prize comes to the winner with a sum of rupees 25,000. I request the guest of honor, His Excellency Dr. Abdul Aziz Usman Al-Tawajiri, to kindly do the honors as I call upon the name. Mr. Ajumit Kumar, MCA, Institute of Technology and Management, Gwalior, State Topper, Bihar, 5,000 rupees. Pathan Sharifa Banu Chand Ali Khan, MAPS, Jamia Millia Islamia, New Delhi, State Topper, Gujarat. Mr. Muhammad Jamshed, PhD, Aligarh Muslim University, State Topper, Haryana. Mr. Shubham Gupta, BA LLB, Dogra Law College, Jammu, State Topper, Jammu and Kashmir. Amir K, MA Sociology, Aligarh Muslim University, State Topper, Kerala. Syed Zahiruddin Barid, BA LLB, Bavashri College of Law, Kollar, Karnataka. Sheikh Shadab Alam Gulab, MPhil, Pune College of Arts, Science and Commerce, Pune, State Topper, Maharashtra. Miss Sumaya Shams, BPT, Jamia Millia Islamia, New Delhi, State Topper, Delhi. Mr. S.K. Junaid Jafri, BTech, Government College of Engineering, Kalahandi, State Topper, Odisha. Miss Nazli Shah, Ahmed, Aligarh Muslim University, State Topper, UP.
एसके जुनैद जाफरी की नाज़ली शाह टिक्का लगाया था आपने। Miss Nazli Shah Ahmed, Aligarh Muslim University, State Topper UP. The All India third prize goes to Syed Alawi Panyathil, PhD, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, from Kerala. The All India second prize, Miss Syed Alawi Panyathil is getting a prize money of rupees 10,000. The All India second prize goes to P. Neela, PhD, Dhanvantari College of Nursing, Ranganur, Tamil Nadu. She is getting a prize money of rupees 15,000. And finally, Mr. Shah Munib Raza, LLM, Pondicherry University School of Law, Puducherry, from Jammu and Kashmir, gets the All India first prize of rupees 25,000. The Sir Syed Memorial on the Spot Essay Writing Competition Mr. Shah Munib Raza just donated the entire prize money to the AMU Alumni Fund because he is also an AMU alumnus, and since as a student he could not bring anything to the AMU Alumni Fund, he has donated this check. We must give him a big, huge round of applause and maybe a standing ovation to Mr. Shah Munib Raza. Ladies and gentlemen, at least the students of AMU should give this gentleman a standing ovation for this very, very kind gesture and for making AMU proud of its alumnus, Shah Munib Raza. Thank you very much. May God bless you. The Sir Syed Memorial on the Spot Essay Writing Competition was held at the Cultural Education Center, AMU, on 27 September 2014. The topic was Sir Syed's idea of secularism in contemporary time, and it was organized in all the three languages, English, Hindi, and Urdu. The first prize in the English category goes to Ms. Zainab Fatima, BA Final. The second prize for the English essay goes to Ms. Alvira Siddiqui, BA LLB, first year. And the third prize in the English category goes to Mr. Naveed Alam, BSc, third year. The first prize for the Urdu essay goes to Mr. Abdul Hamid, BUMS, second year. And the second prize goes to Mr. A. Raqib, BA, second year. Mr. Fazle Kareem, who gets the third prize, is not here, and I would like to announce the names of the prize winners in the Hindi category: Roshni Kari, MA Final, Nilofar Usmani, PhD, and Shan Muhammad, BA Final. Many congratulations to all the winners, and thank you, ladies and gentlemen. Thank you, His Excellency, Dr. Osman. ख़वातीन हज़रात, अलीगढ़ तहरीक और चमनिस्तान सर सैयद का ये काफ़िला जो आज के काफ़िला सारा लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह की क़यादत में आगे बढ़ रहा है। अब मैं गुजारिश करूँगा आली मरतबत शेखुल जामिया से कि वो ख़ुद तशरीफ़ लाएँ। किसी मरतबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे ज़िंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, वाइस चांसलर AMU। अस्सलाम वालेकुम।
and Jai Hind. His Excellency Janab Najib Jung, His Excellency Dr. Abdul Aziz Othman Atwajiri, respected members on the dais, my dear students, teachers of Aligarh Muslim University, ladies and gentlemen. You all are well aware of the present position of the university in world rankings. Aligarh Muslim University stands third amongst Indian universities. और इंशाल्लाह 2017 में ये पहले मुकाम पर पहुंचेगी। हमारा जो सबसे अव्वल मुद्दा है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के लिए कई तब्दीलियां कर रहे हैं, नए हॉल्स बन रहे हैं, 1500 बच्चियों के लिए नया हॉल ऑफ रेजिडेंस इंशाल्लाह 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। इंदिरा गांधी हॉल विमेंस कॉलेज को दे दिया जाएगा ताकि वहाँ कंजेशन कम हो, और एक इंटरनेशनल हॉस्टल NRI स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कायम करेंगे। मेरा जोर जो था खाली तालीम की तरफ नहीं था, मेरी जिम्मेदारी वहाँ तक ख़त्म नहीं होती। मेरी जिम्मेदारी जब तक आपको अच्छी नौकरी ना मिले उस टाइम तक रहती है। इसी वजह से हर डिपार्टमेंट में एक प्लेसमेंट सेल कायम किया गया है और वो काम करेगा। स्टूडेंट्स उसके साथ मिलकर प्लेसमेंट्स के काम करेंगे। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि साहब स्टूडेंट्स पहली प्रायोरिटी हमेशा देते हैं, तो मैं ये आइंदा से सुनना नहीं चाहता। स्टूडेंट्स जो हैं मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। आप लोगों को खुशी होगी कि वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया ने ये तय किया है कि वो एक ऑफिस हमें जामिया मिलिया इस्लामिया में देंगे जिसको हम लाइजन ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है दिल्ली में रहे और हमारे स्टूडेंट्स के लिए उनकी प्लेसमेंट्स के लिए काम करे। अगर कुछ कंपनी अलीगढ़ नहीं आ सकती तो हम लाइजन ऑफिस में भेजेंगे ताकि वहाँ इंटरव्यू हो जाए उनका। आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल से हम NAC एक्रेडिशन की तरफ काम कर रहे हैं। NAC एक्रेडिशन में जो ग्रेडिंग मिलेगी उसी पर UGC की फंडिंग मुकर्रर है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं कई करोड़ रुपए ज़्यादा उनको मिलते हैं। मेरी अपने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मदद करें ताकि NAC ग्रेडिंग हमें अव्वल नंबर दर्जे की मिले। ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एक्टिविटी चलती रहे, कोई दंगे फसाद ना हो। और दंगों फसाद पर आप लोग हंस रहे हैं, मगर मेरे लिए बहुत अहम मामला है, क्योंकि अगर दंगे फसाद होंगे यूनिवर्सिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से बिल्कुल नहीं हुए और ना होंगे इंशाल्लाह,
हमें पता लगा है कि गवर्नमेंट जो है कॉमन एक्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरफ सोच विचार कर रही है। हमारे माइनॉरिटी कैरेक्टर पर बिल्कुल असर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स यूनियन जो है बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी के लिए, और इंशाअल्लाह इसी महीने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कराए जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि स्टूडेंट्स यूनियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेगी और जो काम यूनियन का होना चाहिए वो काम करेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूनियन इलेक्शन में कोई भी सियासत और इलाका परस्ती नहीं होने देंगे। ये सर सैयद के थॉट्स और इथॉस के खिलाफ है। कश्मीर फ्लड्स के जो विक्टिम्स हैं उनकी मदद के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस साल भी जो फंड्स इकट्ठे करे थे डिनर के लिए, सर सैयद के डिनर के लिए, वो भी हम जम्मू एंड कश्मीर भेज रहे हैं। वहाँ के वाइस चांसलर से मैंने बात कर ली है और डायरेक्टली जो फंड्स हमने इकट्ठे किए हैं उनके रिलीफ के लिए ये फंड्स डायरेक्टली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेगी। दो मेरी नंबर 2 प्रायोरिटी थी, वो हमारे टीचर्स जो हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन है और उनके टर्म्स और कंडीशंस ठीक करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हम सिलेक्शन कमिटीज में मशगूल और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह हर एक डिपार्टमेंट का 103 डिपार्टमेंट हैं, उनके सिलेक्शन कमेटी ख़त्म किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलें और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जो एलमनाई हैं अमेरिका में, गल्फ में, विलायत में और हिंदुस्तान में, जिन्होंने हज़ारों स्कॉलरशिप्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए मुकर्रर की हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो विज़न सर सैयद ने देखा था इस यूनिवर्सिटी के लिए, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी उसी मुकाम पर पहुंचेगी। मुझे खाली हमारे टीचिंग स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स की मदद है। मैं और एडमिनिस्ट्रेशन अकेले जो है, जो तब्दीलियां हम चाहते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो अकेले नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। शुक्रिया। जय हिंद। सर, ये आपके खिताब के दौरान दंगे और झगड़े पे इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि इतनी बड़ी जंग की मौजूदगी में दंगे और झगड़े की हिम्मत किसमें है। खातिन हजरात, हमारी खुशनसीबी है कि चमनिस्तान सर सैयद ने ऐसे मायनाज सपूत पैदा किए हैं जो अलीगढ़ और मुल्क की सरहदों के बाहर सर सैयद के इस चिराग से चिराग जला रहे हैं। उसमें एक नुमाया तरीन नाम, एक ऐसे सपूत का नाम, एक ऐसे लेगेरियन का नाम जिसका नाम लेते ही हमारा सीना चौड़ा होने लगता है, वो किसी और का नहीं बल्कि नदीम तरीन का नाम है। जब भी आप गुजरते हैं यूनिवर्सिटी की शाहराहों से तो नदीम तरीन हॉल से जब आप गुजरते होंगे तो ज़रूर आपकी जमी, आपकी पेशानी उनके एहतराम में और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए झुकती होगी। आज हमारी खुशनसीबी है कि बहैसियत मेहमान एजाज़ी नदीम तरीन मौजूद हैं। उन्हें जब भी पुकारा गया है, सच्ची बात यह है कि मिट्टी की मोहब्बत में तुम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, और कितनी परेशानियां उन्हें उठाई हैं। दयार गैर में बाहर जाके सर सैयद की शमा को रोशन किया है। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि आए, चरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया है। कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया है। नदीम तरीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब नजीब जंग साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, मेहमान ज़ी वक़ार मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ उस्मान अत्वैजरी, शेखुल जामिया लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब, मोहतरम प्रो वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, और मेरे अज़ीज़ और मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, आज यकीनन बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए ख़ास तौर पर कि मेरी अपनी मादर दरसगाह ने मुझे वो एज़ाज़ बख्शा है जिसका हम लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यकीनन मादर दरसगाह से मोहब्बत यहाँ से निकलने वाले हर तालिब इल्म में कूट कूट कर भरी होती है। वही मुझ में और मेरे तमाम साथियों में जिन्होंने इस इदारे से मुस्तफ़ीज़ होने का शर्फ़ हासिल किया, उन सब में वो सब कूट कूट कर भरी हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का रहम और करम है कि उसने मुझे उन सब बातों से नवाजा और इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई अपनी ख़ुद जामिया से दिलवाई कि जो हम लोग सब के सब जिसकी तमन्ना कर सकते हैं और जिसकी ख्वाहिश कर सकते हैं। मैं उस सब के लिए अपनी जामिया के जितने ओहदेदारान हैं और जितने मोहब्बत करने वाले ये सारे तालिब इल्म हैं, उन सब का अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और ममनून हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। हमने जब इस मादर दरसगाह में तालीम पाई तो तकरीबन ये सर सैयद का मैं समझता हूँ उनकी मोहब्बत है अपने शागिर्दों से, और जिस तरह उन्होंने अपने शागिर्दों को बिहेव किया था अपने ज़माने में कि इन दीवारों में और इन सड़कों में और यहाँ के लॉन्स में और यहाँ की इमारतों में वो खूबी पिन्हा है कि यहाँ पर रहने वाला हर शख्स इस मादर दरसगाह से इस तरह ताल्लुक़ उसका जुड़ जाता है कि जब वो यहाँ से चला जाए और ज़िंदगी के किसी भी काम में मसरूफ़ हो, वो कभी भी अपनी मादर दरसगाह को नहीं भूल पाता और उससे उसका अटैचमेंट और उससे ज़्यादा हो जाता है। आप यकीन कीजिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें इस बात का एहसास शायद ना हो, लेकिन जब हम इस मादर दरसगाह से चले जाते हैं तो हमारे अंदर इसकी मोहब्बत कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाती है, और हर वो शख्स जो इस मादर दरसगाह को छोड़कर चला गया हो वो कभी इसको नहीं भूल पाता। ये इस मादर दरसगाह के निकले हुए नौजवानों की खूबी है कि उनका दिल हर वक्त तालीम के लिए धड़कता रहता है। सर सैयद ने जो मिशन चलाया था और जिसका उन्होंने तसव्वुर किया था कि यहाँ पर ऐसे तालिब इल्म पैदा हों कि जो सिर्फ़ अपनी तालीम को लेने के बाद हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर नौकरियों तक न जुड़े रह जाएं, बल्कि उनकी सोच और फ़िक्र ये हो कि किस तरह मेरे इस तालीमी मिशन को वो आगे बढ़ाएंगे और किस तरह इस तालीम की रोशनी को और ऐसे लोग के जो तालीम से बेबहरा हैं मुल्क में, उनके लिए सामान पैदा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे बहुत अलीगेरियंस हैं, अगर आप नाम गिनने लग जाएंगे तो शायद हज़ारों में ऐसे अलीगेरियंस होंगे कि जिन्होंने मुल्क के गोशे गोशे में छोटे छोटे गाँवों में जाकर तालीमी इदारे बनाए हैं। मैं समझता हूँ सर सैयद को खराज तहसीन पेश करने का ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि हम सब ये अहद करें कि जहाँ जहाँ हैं, जिस जिस जगह हैं, अपने गाँवों में अपने अतराफ़ में देखेंगे और वो सोशल वर्क और वो समाजी काम जो सबसे ज़्यादा अहम था, जिसको एक ऐसे हकीम और एक ऐसे दाना डॉक्टर ने पहचाना था। जिस तरह आप किसी मर्ज़ के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर सैयद का बिल्कुल वही तरीक़ा था। वो इतने बड़े हकीम और इतने बड़े डॉक्टर थे कि उन्होंने अपनी पूरी कौम की नब्ज़ पर हाथ रखकर पहले उस मर्ज़ को तशख़ीस किया जो कौम के ज़वाल का बायस था, और उसके बाद उसकी दवा भी तजवीज़ की। मैं समझता हूँ इससे बड़ी तशख़ीस और इससे बड़ी तजवीज़ कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता था जो सर सैयद ने अपने ज़माने में की थी, और उन्हीं की उस तजवीज़ को आज तक हम पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। हर शख्स की दवा सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है। हम सब को ये अहद करना चाहिए कि सर सैयद के इस जश्न पर हमें जो मैसेज लेकर जाना है यहाँ से, वो ये लेकर जाना है कि चाहे हम एक छोटा सा गाँव में इदारा कायम करें, एक छोटा सा स्कूल कायम करें, मगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ हम कोई स्कूल न बना सकें और जहाँ तालीमी शम्मा रोशन न कर सकें। हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने अपने टेन्योर में जो इस यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं और इसके लिए जो अनथक कोशिशें की हैं और हर तरफ से जो फ़ंड्स लाने की कोशिश की है, वो सब यहाँ के तालिब इल्मों और यहाँ के असातिज़ा की मदद के लिए हैं। मैं समझता हूँ एक ज़माने के बाद ऐसा दौर आया है कि जब यूनिवर्सिटी ने एक नया वक्त देखा है। एक ज़माना था
कि जब सन 62-63-64 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कैनेडी हाउस और दूसरी इमारतें बन रही थीं। आज दोबारा वो दौर आया है कि आपके 5 साल में फिर हम नए नए हॉस्टल्स और नई नई इमारतें देख रहे हैं। ये 2020 में जो यूनिवर्सिटी को 100 साल होने जा रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन मौका और बेहतरीन वक्त है कि हम आज से उसकी तैयारी करें और ये अहद करें कि हम हर वो रिसोर्स जमा करेंगे, हम सब मिलकर, जो 1920 से पहले 7 साल की मुद्दत में सन 1913 से लेकर और 1920 तक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मुहिम चलाई गई और उसके लिए बेशबहा फंड्स जमा किए गए। वही वक्त अब है कि हम 100 साल पूरे होने पर मिलकर कोशिश करें, वो सब यूनिवर्सिटी को दें जो 21वीं सदी में हमारे आने वाली कौम को जिसकी ज़रूरत होगी। आइए हम सब तहैया करें कि हमारा मोहतरम वाइस चांसलर साहब और हुकूमत हिंद की मदद से हम उस टारगेट को पूरा कर सकेंगे जो आपने मुअय्यन किया है। कम से कम 8000 लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल की नई फैसिलिटीज़ और कई नए डिपार्टमेंट्स वर्ल्ड लेवल के, जिसमें हमारे असातिज़ा और हमारे उस्ताद रिसर्च का काम, इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च का काम कर सकें। इसके अलावा यकीनन जो एक्सपेंशन आपने किया है, जो नए सेंटर्स बन रहे हैं, वो ऐसा काम है कि जिसको कौम कभी नहीं भूल सकती। उसमें आपकी कोशिशें ऐसी हैं कि जो आने वाले वक्त में पूरी कौम याद करेगी। यकीनन वो सेंटर्स वो तमाम खिदमात अंजाम देंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अंजाम दे रही है। उस सब के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी अनथक कोशिशों और मेहनतों का यहाँ के असातिज़ा जो दूर दूर जाकर उस काम को पूरा कर रहे हैं, उस सब के लिए मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम ओल्ड बॉयज़ की तरफ से आप सब की खिदमत का एतराफ़ करता हूँ और आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मेहनत और अनथक से उन इदारों को फ़रोग़ दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जैसा कि अभी मोहतरम वाइस चांसलर ने बताई, मैं इस पर बहुत दिन से अपने साथियों से, जब मैं कोर्ट में था तो भी उनसे मैं ये कहता रहा कि देखिए, हमें अगर अपनी यूनिवर्सिटी को तरक्की देनी है और फ़रोग़ देना है तो वाइस चांसलर को, नए वाइस चांसलर को लाने से पहले चाहे जितनी छानबीन कर लीजिए, चाहे जितनी ढूंढ लीजिए कि जो बेस्ट हो हिंदुस्तान का सबसे मोतबर आदमी, उसको ले आइए। लेकिन जब वो आ जाएं यहाँ तो उनको फिर पूरी तरीके से इख्तियार दीजिए और उनके हाथों में अपनी यूनिवर्सिटी को सौंप दीजिए और उनसे कहिए कि अब 5 साल तक आप हमारे रहबर हैं, आप जो बताएंगे, जिस नहज पर हमें ले जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी उस नहज पर चलेगी और हम सब आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ मजबूत करने के लिए होंगे। कोई एक शख्स, किसी भी बात में इख्तलाफ हो सकता है, बात को पहुंचाने में कोई भी मजायका नहीं है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि NRIs जो बाहर हैं वो आप तक अपनी बात पहुंचाएं और आप बहुत खंदा पेशानी से उसको सुनते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात पहुंचाने की हद तक सही है, उसके बाद इख्तियार उनको दे दीजिए कि आप और आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो तय करेगा, हम सब आपके साथ हैं। ये जज्बा अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो पिछले वाइस चांसलर्स की तरह उनकी ताकत और उनकी एनर्जी जो है वो डिफ्यूज़ करने में लग जाती है, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता। मैं गुजारिश करूँगा अपनी जामिया के तमाम असातिज़ा इकराम से और तमाम यहाँ पर काम करने वालों से और स्टूडेंट से कि वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ मजबूत करें। देखिए कि यूनिवर्सिटी जिस तरह इन लोगों ने अज़ाइम कर रखे हैं, वाकई 2017 में इस मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नदीम तरीन साहब बता रहे थे कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। आइए ख़वातीन हज़रात, इट इज़ माई प्राउड प्रिविलेज टू वेलकम गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ उस्मान तवेजरी। His citation, his whole introduction in detail was given to you yesterday. I am inviting everyone with an Urdu couplet. I have an Arabic couplet for you. Ya Zaifuna law jetana lawajatana nahanu zuyufu wanta rabbul manzili. Please, Dr. Osman. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, you can see me in your beautiful local and national dress. And I'm very proud of this. It's a memorable and historical moment for me. The photos that have been taken will be in my office, so everybody in ISESCO and the Federation will see the Director General and Secretary General becoming a true Indian patriot. First of all,
all praise is to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon His messenger, his family and his companions, and all the good people all over the world. Excellency Shri Najib Jong, the Honorable Governor of Delhi, Chief Guest. Excellency the Vice Chancellor of AMU, the Honorable Lieutenant General Mr. Zamiruddin Shah. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am extremely pleased to address you at this ceremony marking the birth anniversary of Sir Syed Ahmad Khan, which took place on the 17th of October, 1817. He is remembered today as the founder of AMU, which was first established as Madrasatul Ulum in 1857, and later in 1878 became Muhammadan Anglo-Oriental College. AMU and its founder have become worldwide known and respected. And Sir Syed Ahmad Khan Bahadur, who was a senior Muslim scholar, a leading authority on modern Islamic education in the Indian subcontinent, and one of the key figures of the intellectual and educational renaissance in the Muslim world in the 19th century, and a leading modern reformer, is worthy of our respect and appreciation and prayers, because he laid down the foundations of knowledge, of enlightenment, of reform in this place and all over the Islamic world. More than that, Sir Syed Ahmad Khan was one of the major architects of the early Muslim renewal movement, which inspired a generation of revival and Renaissance advocates in most Arab and Muslim countries. This has contributed greatly to mind awakening and enlightenment, restoring the sense of pride in Muslim people's origins and historical belonging, and rebuilding modern Islamic thought. I would like first, as being honored to be with you here, to thank His Excellency the Vice Chancellor of this great university, Lieutenant General Zamiruddin Shah, for inviting me, for giving me the pleasure and the privilege to be here with you. And I will assure him and all those who work in this honorable university that my visit is the opening of a very strong and lasting cooperation between this university and ISESCO and the Federation. Great scholar and thinker Sir Syed Ahmad Khan set three key objectives for this university. These are, first, to teach Muslims both Western and Oriental culture without fanatic or rigid stances. Second, to provide a safe environment for students, learning and social growth. And third, to elevate the mind, the body, and raise the moral standards of students. This shows that the university provides an education system that goes beyond teaching to offer education as a holistic approach. And that's what we need in all our educational institutions all over the Islamic world. We have to rekindle thinking and make our minds work. What made us behind many nations is that we forgot our minds and got busy with other things. And mind is the way to knowing God, to knowing the universe, and to choosing the right path to advancement, to better life, to innovation, to glory and success. Also significant, Sir Syed Ahmad Khan was a great religious reformer and an accomplished educator with a sensitive political vision. He maintained that Indian politicians should focus on making India one nation. The colonizers
came to our countries and they divided and ruled. Before that, we were one nation, despite the differences in religion and creed and languages and whatever. They came and they used this theory, divide and rule, not only in India, but in the Middle East, in Africa, everywhere. And what we feel now and what we have now is the remnants, is the effect of the vicious policies in our countries. We have to go back to our origins as one nation, respecting one another, respecting our culture and religious diversity, and building our countries with strength and with pride. That's what Sir Syed Ahmad Khan said. That's what he worked for. He didn't differentiate between Muslim, Hindu, Buddhist, Christian, whatever. He wanted those components of any society, and primarily in India, to be one nation, a strong nation. And this is what we should come back to and do in our lives. And ISISCO is really learning from the life of Sir Syed Ahmad Khan and his thoughts. Because we are doing the same thing in our works, in our research, in our symposia, in our conferences. We want our ummah to wake up, to use the mind, to unite, to go ahead, forget the differences, the sectarian differences, the religious differences, the language differences. Unity is strength. Division is weakness. So the weapon that the colonizers used, we should break it. We should destroy it. We have the secret of our strength, and that is our unity and our respect of each other. Dr. Ahmed Amin, one of the great Arab Muslim thinkers from Egypt in the first half of the 20th century, was among the first writers who introduced the Indian scholar Sir Syed Ahmad Khan to Arab readers in his book, Leaders of Reform in the Modern Age, which was published in the mid-40s of the last century. In this book, the founder of the AMU was mentioned among the elite of great reformers such as Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Amir Ali, Khairuddin Pasha, Ali Pasha Mubarak, Abdullah al-Nadim, Abdul Rahman al-Kawakibi, Sheikh Muhammad Abdu, and Midhat Pasha. Those who were the early reformers of the Islamic thought and those who were fighting the remnants or the effects of the ages of decadence, of ignorance, of backwardness. He is in the forefront of those leaders of modernizing our thought and improving our situation. And the Sheikh Abdul Mun'im al-Nimr, the former Egyptian minister of Awqaf and the former rector of the Al-Azhar universities in the 70s of the last century, drew upon in his book The Struggle of Muslims of the Liberation of India, which he authored during his stay in India as an envoy of Al-Azhar. He drew the bright image of Sir Syed Ahmad Khan and introduced that bright image to us in the East. We are supposed to be the East. You are more Eastern than us. You are here in an advanced part of the East. But they call us the Easterners. And I don't know what they call you. If we are Easterners, what do they, the subcontinent people and Malaysia and Indonesia and Brunei and Bangladesh and all these countries are called? I don't know. Are they the Westerners? I don't have any explanations of these, stupid Western people who have this centralism in the European centralism or Western centralism in their minds. They think because they had a chance to colonize many countries and usurp their wealth, they thought that they are, the rulers of the universe. They can give names and give, divisions and call people whatever they wanted. Time of that kind of work is gone. It will not come back again. Today we are celebrating the memory of a virtuous man whose one of his noble deeds was the founding of this great university, which has carried the message of Islamic culture, enlightenment, and exposure to Western culture. Indeed, it has always stood out as an imposing edifice of science, knowledge, and education in this country,
which abounds in talents and competencies in various fields of knowledge, and which Sayyid Ahmad Khan was one of the pioneers of its renaissance that began in the 19th century. So let us take advantage of this leading experience for our present era and draw inspiration and strength from the historical expertise of this great Indian reformer. I pray to Almighty Allah to shower His blessings and mercy on the late Sir Sayyid Ahmad Khan, rahimahullah, because he gave not only this nation in India this spirit of belongingness, of enlightenment, of reform, but he inspired many Muslims all over the world. And this is a great achievement that nobody can value its weight and its importance. I also pray to Almighty Allah to save this university and give it all the success. And I have a word to the Honorable Vice Chancellor and my dear brother, Lieutenant General Zamiruddin Shah. You are a great leader of this university. I think under your management and directorship, this university will see more advancement, more progress, and it will stay as a minaret of knowledge, not in India, but in the whole world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ख़वातीन हज़रात, मेहमान ख़ुसूसी तक पहुँचने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हज़रात ज़ोरदार तालियों से उन लोगों की हौसला अफजाई करें। अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज ने, ये जो नाबीना बच्चे हैं, इन्होंने सबसे पहले इस्तक़बालिया तराना पेश किया था और कौमी तराना गाया था। ज़ोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। इन लोगों ने जिस खूबसूरती के साथ इस्तक़बालिया गीत पेश किया था, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ख़वातीन हज़रात, आइए अब वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ गज़ल का मक़ता पहुँचता है। जंग साहब जब जामिया में पहुँचे तो 3 ऐसे सुनहरे काम किए जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। एक तो जंग के जामिया में पहुँचते ही अमन व अमान कायम हुआ, और दूसरा काम ये हुआ कि उर्दू को वो दर्जा मिला जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, और तीसरा बड़ा काम, जामिया का अक़लियती किरदार उनके दौरे वाइस चांसलरशिप में रिस्टोर हुआ। आपने अभी सुना था कि उनके ख़ानदान, उनके आबा व अजदाद के जो ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, जब भी अलीगढ़ की तारीख़ या अलीगढ़ तहरीक या यूनिवर्सिटी की तारीख़ लिखी जाएगी तो मुअर्रिख़ घूम फिर के जनाब नजीब जंग के आबा व अजदाद तक पहुँचता है और बात वहाँ की रुकती है। ख़वातीन हज़रात, ये हमारी खुशनसीबी है। मेरा दिल तो ये चाहता है कि एक शेर पढ़ दूँ उनके आबा व अजदाद के ताल्लुक़ से कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए हज़रात, अब मैं नजीब जंग को आपके सामने पेश करता हूँ, आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी, और इस शेर के साथ के चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं। मुझे पता नहीं उनका उर्दू जामिया में रहने के बाद कितनी है। बहरहाल, चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। तुमने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। आली मर्तबत नजीब जंग साहब, चीफ गेस्ट ऑन दिस मेमोरेबल ओकेजन। जनाब वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अज़वदेरी, नदीम तरीन साहब, रजिस्ट्रार साहब, टीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, मुख्तलिफ़ शोबों के सदर, सेंटर्स के डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यहाँ आए हुए दूर दूर से मेहमान, और आप सब इस अजीम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म। जब जनरल शाह ने मुझे फ़ोन किया यहाँ मदऊ करने के लिए, तो आज तक मैं समझ नहीं पाया कि ये मुझे चीफ गेस्ट के लिए क्यों बुला रहे थे, क्योंकि सच बात यह है कि मैं चीफ गेस्ट के लायक अपने आप को समझता नहीं हूँ। इस मौके पर सर सैयद की बर्थडे पर सालों से हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत यहाँ आई हैं और आप लोगों को एड्रेस किया है, तो मेरा नाम यकीनन उस फ़हरिस्त में नहीं है।
लेकिन शायद जनरल साहब ने मेहरबानी की, क्योंकि आपने सुना कि मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है। मैं ख़ुद हेजिटेट करता हूँ अपने ख़ानदान की बात करने के लिए, कि मेरा ये मानना है, और मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि ख़ानदान ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप लोग ख़ुद क्या करेंगे और क्या बनेंगे। लेकिन मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, उनका हुक्म था कि मैं अपने परदादा के बारे में यहाँ ज़रूर जिक्र करूँ, से नाराज़ हो जाएंगे। तो मौलवी समीउल्लाह खां साहब ने लंदन का सफ़र किया था सर सैयद से करीब 10 साल पहले, और सर सैयद ने भी और उन्होंने भी अपने मुसाफिराने लंदन के नाम से किताबें शायर की थीं, और आप ही के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने फिर से पिछले साल उसको दोबारा पब्लिश किया। सर सैयद की समीउल्लाह खां साहब की किताब में एक पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको शायद ये अंदाज़ हो कि ये यूनिवर्सिटी एक आम यूनिवर्सिटी नहीं है, एक बहुत सीक्रेट इदारा है, और मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 8 जनवरी 1877 को जब कॉलेज के बाकायदा इफ्तिताह का वक्त आया, तो मैं यानी समीउल्लाह खां और सर सैयद नमाज तहज्जुद के वक्त, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, नमाज तहज्जुद के वक्त उठकर मैदान तामीर में गए। तबीयतों में कौमी हमदर्दी, दिल में एक अजीब कैफियत तारी थी। ज़िंदगी और तरक्की के ख्वाब की पहली ताबीर, तबीयत में जोश व वलवला था, गिरिया तारी हो गया। रो रहे थे, हम दोनों रोते जाते थे। रब्बे ज़ल जलाल के सामने गुनाहों के एतराफ़ करते जाते थे, और उसके फ़ज़ल व बख्शिश के लिए हमारी ज़बानों पर दुआ थी। सर सैयद मुझसे इसरार करते थे कि मैं संग बुनियाद रखूं, और मैं सर सैयद से इसरार करता जाता था। आखिर सर सैयद का इसरार गालिब आया, और मैंने इंतहाई रिक्कत क़ल्ब के साथ ये फरीज़ा अंजाम दिया। ये आम यूनिवर्सिटी की दास्तान नहीं हो सकती। मैंने ख़ुद ने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था 1968 में, और इससे पहले कि मुझे एडमिशन मिलता और आपका मुझे एडमिट कार्ड मिलता, मुझे दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला मिल गया। तो मेरी बदकिस्मती ये कि मैं यहाँ से महरूम रहा, या आप मुझसे महरूम रहे हैं। बहरहाल सर सैयद का मुकाम हिंदुस्तानी तारीख़ में अनोखा है। आज उनका नाम लेते हुए रजिस्ट्रार साहब को मेरी उर्दू पे शक था, तो मैं गालिब का शेर पढ़ देता हूँ। ज़ुबां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया, कि मेरे नुक्त ने बोसे मेरी ज़ुबां के लिए। गांधी जी ने सर सैयद को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा है, और उनकी एजुकेशन के बारे में आप हर साल सुनते हैं, आपने अभी भी बहुत सुना। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर सैयद का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन से भी ज़्यादा महान था और चौतरफा था। एक तरह से गांधी जी की तरह सर सैयद भी कौम के मार्गदर्शक थे। जिस ज़माने में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ रहा था, तो 1883 में पटना में एक बहुत ऐतिहासिक तकरीर सर सैयद ने की थी, वो भी मैं आप बच्चों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और मैं कोट करता हूँ। इन इंडिया देयर लिव 2 prominent races which are distinguished by the names of Hindus and Muslims. Just as a man has some principal organs, similarly these two peoples are like the principal limbs of India. To be a Hindu or a Muslim is a matter of internal faith, which has nothing to do with mutual relationship and external conditions. How good is the saying, whoever may be the author, that a human being is composed of 2 elements, his faith which he owes to God, and his moral sympathy which he owes to his fellow being. Hence,
leave God's share to God, and concern with that share which is yours. हर साल आपके यहाँ ये तारीख़ी दिन जलसे का आयोजन होता है, बहुत शान व शौकत से आप इसका आयोजन करते हैं। हर साल आप अलीगढ़ के एक मशहूर स्टूडेंट्स को याद करते हैं, और ये फ़हरिस्त बहुत तवील है, बहुत लंबी है। राजा महेंद्र प्रताप, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जनाब शेख अब्दुल्ला साहब, हज़रत मोहानी, रफ़ी अहमद क़ज़वाई साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, खेल के क्षेत्र में ज़फ़र इकबाल, लाला अमरनाथ, और आज दुनिया में लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट अशोक सेठ जैसे नाम आपकी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और जैसे तरीन साहब ने कहा कि आपका AMU एसोसिएशन, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, आज ऑस्ट्रेलिया से लेके और अंडमान से लेके और वेस्ट इंडीज़ से लेके हर जगह कायम है, और हर जगह वो जलसे करते हैं और आप लोगों की बहबूदी के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए दुआएं करते हैं। तो माजी का हर साल यहाँ जिक्र होता है, कितनी आलीशान यूनिवर्सिटी है, कितनी अच्छी बनी, कितने तवील स्टूडेंट्स थे। मैं माजी की नहीं, मैं आपसे मुस्तकबिल की बात करना चाहता हूँ, और सिर्फ मैं इन बच्चों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सामने न सिर्फ आपका मुस्तकबिल बल्कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। आपके सामने आपके कौम का मुस्तकबिल है, आपके गांव का मुस्तकबिल है, आपके घर का मुस्तकबिल है, आपके डिस्ट्रिक्ट और ज़िले का मुस्तकबिल है। इकबाल का शेर याद कीजिए, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस जलवे पे पर्दा पे पर्दों को छिपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख। इसको मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। है तेरे तसव्वुर से ये बादल ये घटाएं, ये आप लोग समझें, है तेरे तसव्वुर से ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फ़ज़ाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, अय्यान अय्याम में आज अपनी अदा देख, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। आप लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, मेरा ये मानना है कि इसका अंदाज़ आपको ख़ुद को भी नहीं है, क्योंकि आप अपने ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं, अपने ऊपर बेड़ियाँ डाल रहे हैं। आपके ऊपर समाज ने, कुछ हद तक परिवार ने, कुछ हद तक माहौल ने जंजीरें डाली हैं। उसका जवाब जानिसार अख्तर साहब ने दिया था कि अपने तारीक मकानों से तो बाहर झांको, ज़िंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारो। इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी की सुविधाएं, आपके ये अच्छे अच्छे क्लासरूम, या आपकी लाइब्रेरीज़, राइडिंग क्लब्स, स्विमिंग पूल, आपके अच्छे अच्छे उस्ताद जिन्होंने आज इतने इनाम पाए हैं, ये मेरी नज़र में एक हद तक फ़ायदेमंद है। असली फॉर्मूला सक्सेस का आपके अंदर है, और वो फॉर्मूला आपको खुद ढूंढना होगा, और इसके लिए ज़रूरत है आप लोगों को एक नए जुनून की, एक इनकलाब की। वो इनकलाब जो आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सके, वो जुनून जो अर्जुन की तीर की तरह मछली की घूमती हुई आँख को देखता था, इधर उधर होते हुए शोर मुझको नहीं देखता था। अगर मुस्तकबिल बनाना है तो ये समझ लें कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। तो अपने सामने अपनी लिमिटेशंस ख़त्म कीजिए। ये भूल जाइए कि कौन सेंट स्टीवंस में पढ़ा है, कौन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कौन लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ा है। मैं 10 साल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, और मैंने वहाँ बहुत बच्चे देखे जिन्होंने कुछ नहीं किया, और मैंने अलीगढ़ के बहुत बच्चे देखे जिन्होंने अपना नाम
बहुत कमाया। तो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का ठप्पा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के ठप्पे से कुछ नहीं होता। मेरी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जब ये डिग्री पा के निकलेंगे तो आप समझते हैं कि आप किसी कोर्ट में, किसी मुंसिफ कोर्ट में वकील बनेंगे या यूपी सर्विस में आप नौकरी करेंगे या यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में आप डॉक्टरी करेंगे। मेरा आपसे कहना यह है कि अगर वकालत करनी है तो आपको हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में करनी है। अगर आपको इम्तहान देना है और सक्सेसफुल होना है तो आपको आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के इम्तहान देके सक्सेसफुल होने। यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में 1960 में मेरे बड़े भाई पढ़ने आए थे। एक प्री मेडिकल का इम्तहान दिया था उन्होंने दिल्ली में, वो कामयाब नहीं हुए, मेडिकल में उनको दाखिला नहीं मिला। अलीगढ़ में उन्होंने बीएससी जनरल ज्वाइन किया। तैयब जी यहाँ पर वाइस चांसलर थे और उन्होंने उनको कहा कि तुम आईएएस में बैठो और तुम कामयाब होगे। तो हमारे भाई ने कहा कि साहब मेरा तो ऐसा एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं है कि मैं आईएएस का इम्तहान दे सकूं। तैयब जी ने उनको इंस्पायर किया। मेरे भाई वापस दिल्ली गए, उन्होंने वहाँ एलएलबी किया और 1965 में उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। और न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होकर रिटायर हुए। मेरे साथ दिल्ली से मेरे एक कलीग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अजय चौधरी साहब, जो दिल्ली पुलिस में जॉइंट कमिश्नर हैं, आजकल मेरे ऑफिस में मदद करते हैं, आपके यहाँ के स्टूडेंट हैं। और दफ्तर वाले भाई हाथ हिला दो यार। और ऑफिस में कोई दिन नहीं होता कि ये आपकी यूनिवर्सिटी को याद नहीं करते, जो तरीन साहब ने कहा। तो कोई लिमिट्स नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप अपने आप की अपनी सोच को एक महदूद कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में, अलीगढ़ की पॉलिटिक्स में, यूपी की पॉलिटिक्स में, समाजवादी पॉलिटिक्स में, इससे तो आप कहीं ज़्यादा आपको आगे सोचना पड़ेगा। आपको अब ये कल्पना करनी पड़ेगी कि अगर राजनीति करनी है तो हिंदुस्तान का आप नेतृत्व करेंगे, अगर राजनीति करनी है तो हिंदुस्तान का नेतृत्व विदेशों में करेंगे। तो थोड़ा सा सोच को बढ़ाइए, आपके जो दिमाग की खिड़कियां हैं इनको खोल दीजिए ताकि ताज़ा तरीन हवाएं आएं। मैं बहुत कह चुका, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता था। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि एक नया अलीगढ़ मूवमेंट को खड़ा करने का वक्त है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अलीगढ़ को हिंदुस्तान में लीड देनी पड़ेगी मॉडर्न ख्यालात की। यहाँ अब ज़रूरत है एक प्रगतिशील राजनैतिक, सामाजिक और नए धार्मिक सोच की। आपको ये विचार करना होगा अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने हॉस्टल्स में कि सेकुलरिज्म क्या है, प्रगतिशील सोच क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या है। मॉडर्न विचारधारा के साथ साथ अलीगढ़ को के तालिब इल्म को इंसानियत का एक ट्यूशन, एक तरीके से ट्यूशन देनी पड़ेगी मुल्क को, क्योंकि इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। आप अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदू तभी हो सकते हैं जब आप अच्छे इंसान हैं। और ये आपकी स्टेज है। तो जब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा बच्चों से अनुरोध है कि मेरे साथ साथ आप ही के तराने की एक पंक्ति बोलें ताकि कुछ मज़ा भी आए। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जुए रमा पर बरसेगा, हर कोहे गिरा पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। मैं फिर वाइस चांसलर साहब का एहसान बता दूं, क्योंकि मैं वाकई अपने आप को नहीं समझता था इस लायक कि आप मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में मदऊ करें। मैं बहुत एहसानमंद हूँ सर आपका। और अलीगढ़ के बच्चों से फिर मैं कहूँगा, आह्वान करूँगा कि आपको कभी आप यहाँ से आएँ, दिल्ली आएँ,
अगर आपको किसी काम की ज़रूरत हो, कोई काम हो दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली शासन से, तो निसंकोच आप मुझसे या चौधरी साहब से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां अपने सीनियर ओल्ड बॉय चौधरी साहब के लिए भी बजा दीजिए। अलीगढ़ हाउस की एक गुजारिश की गई थी। ये अलीगेरियन होने का सबूत दिया इन्होंने, आके याद दिलाया जंग साहब को। प्लीज, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Now I'm caught because I really don't know what powers I have to grant land in this fashion and waqf land in this fashion. But I can certainly press on Delhi Waqf Board and even the Delhi Development Authority to look for land which we should give. I am sure the Delhi Waqf Board has enough valuable land located at strategic places where I can request the chairman of the Waqf Board, and nowadays because fortunately there is no government, perhaps I can press on them to make land available to the university. Thank you very much. We firmly believe that as Lieutenant Governor and given scenario, you have unlimited power, sir. Ladies and gentlemen, जिस वक्त नजीब जंग साहब अपना खिताब लेके आ रहे थे तो वो देवनागरी रस्मुल ख़त में था। उस वक्त ज़रा सा शुबा था, लेकिन अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सलीक़ा सबको नहीं आता गुफ्तगू का जनाब, सलीक़ा सबको नहीं आता गुफ्तगू का जनाब। हर एक लब पे कब उर्दू ज़बान होती है, हर एक ज़बान के अल्फाज कब महकते हैं, हर एक खेत में कब ज़ाफ़रान होती है। जनाब नजीब जंग साहब को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। प्रोफेसर अनीस इस्माइल सर। Assalamu alaikum. Honorable Najib Jang Sahab, Lieutenant Governor of Delhi, esteemed Dr. Abdul Aziz Usman Al-Tawajri, Dr. Nadeem A. Tareen, respected Lieutenant General Zamiruddin Shah, the Vice Chancellor, and Brigadier Syed Ahmad Ali, the Pro-Vice Chancellor, the Registrar, AMU Aligarh, distinguished guests, dear faculty members and students, Assalamu alaikum. It's my great pleasure and privilege to move the vote of thanks on this historic day as we commemorate the birthday of our founder Sir Syed Ahmad Khan, a visionary, a trend-setting thinker and a statesman. The range of his contributions to the diverse domain of education, journalism, social reform, thought, religious discourse, and literature is amazing and breathtaking. He brought about a renaissance in the aftermath of post-1857 catastrophe which had afflicted our country and our community in particular. Sir Syed Ahmad Khan showed the way, which is anchored deep into the hard work, dedication, critical thinking, scientific temper, and positive outlook on life. Little wonder then that his message has transformed the lives of millions since the inception of this first-rate educational institution known as the Aligarh Muslim University. Ladies and gentlemen, we all have assembled here to pay our tribute to the noble and great soul of Sir Syed Ahmad Khan. The most fitting homage to the departed soul consists in imbibing the forward-looking spirit of his mission. This will ensure our all-round success. On behalf of Aligarh Muslim University, I take this opportunity to thank the chief guest, the guest of honor, all dignitaries, the AMU fraternity, and all those who helped in making this program a grand success. Thanking you all. Followed by national anthem. You are all requested to please rise in your seats when the national anthem starts, and all, not now, after the tarana, and please remain standing till the guests have left the pandal. Please, मजाज का तराना आपके सामने। एक छुट्टी का ऐलान वाइस चांसलर साहब कर एक बार और कर दीजिए सर।
मैं चीफ गेस्ट साहब का परमिशन चाहता हूं कि कल छुट्टी डिक्लेयर की जाए। मैं चाहूंगा कि आप परसों की भी छुट्टी कर दीजिए। संडे कल इंशाल्लाह छुट्टी होगी। चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जोता के हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। ये दश्त जुनून
हमेशा बरसा है ये अब्र हमेशा बरसेगा 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 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे अंधियारे जहां होंगे एक क्षमा जला देंगे खुद बन के उजाला हम जुल्मत को मिटा देंगे अंधियारे जहां होंगे एक क्षमा जला देंगे खुद बन के उजाला जुल्मत को मिटा देंगे अंधियारे जहां होंगे तालीम की ये तहरीक सैयद ने चलाई है मिलजुल के बढ़े आगे ये सीख सिखाई है तालीम की ये तहरीक सैयद ने चलाई है मिलजुल के बढ़े आगे ये सीख सिखाई है तहज़ीब व अदब का हम माहौल बना देंगे तहज़ीब व अदब का हम माहौल बना देंगे अंधियारे जहां होंगे एक क्षमा जला देंगे खुद बन के उजाला जुल्मत को मिटा देंगे अंधियारे जहां होंगे सींचेंगे
जाए।